Hello, welcome to you all student. Student, in yesterday period we have learned about the oxidation and reduction reaction. Actually, in that period we have learned about their definitions of the oxidations and the reductions. Yes, and as well as we have learned the one another kind of the reaction, that is a redox one there. ठीक है? तो actually in that oxidation process, oxygen is a combined, that is a combination of the oxygen and the removal of the hydrogen is known as a oxidation. और reduction में क्या था बेटा? That is a combination with hydrogen and removal of the oxygen is known as a reduction. As well as according to the ionic reactions, yes, okay, electrons donates and gain, and related to that donating electrons capacity and the gaining electron capacity of the metals and non-metal. Yes, okay, and belonging to that we have again the classify, again define the different kind of the definition, yes, for oxidation or the reduction. In oxidation process, when carries, that time electrons are the loose there, losing the one or more electrons. Such kind of the reactions is known as also known as a oxidation. And in a reduction, that is the gain the electrons, and such kind of the reactions is known as the reduction. चलिए बेटा, हमने यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन को लर्न किया था और उसके अलग अलग एग्जांपल्स लेते हुए हमें उसे एक्सप्लेन किया था. और एक्चुअली ऐसे कुछ एक रिएक्शन हमने लर्न की थी कि जैसे साइमल्टेनियसली बोथ रिएक्शन, जैसे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन simultaneously takes place in a same reaction. That time such kind of the process, yes, that is a redox. we also say as a redox there. चलिए बेटा, हमने यहाँ पे redox को लेकर लर्न किया था. Actually today we are going to learn our new small unit. Yes, okay, in this unit we have carry one simple experimental activity, and with help of that experimental activity we have learned one phenomenon which is a familiar to us in our, जैसे कि डे टू डे लाइफ में हमें दिखाई देता है, रिलेटेड टू द डिफरेंट काइंड ऑफ द मेटल, जैसे स्पेशली इन मेजर केस ऑफ द आयरन आर्टिकल्स में हमें ज्यादा से ज्यादा, जैसे ऑक्सीडेशन, जैसे रिडक्शन, ये जो प्रोसेस होती है मेटल को लेकर, ये जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो प्रोसेस होती है, जैसे इसी को लेकर देखिए बेटा, जैसे आयरन मटेरियल में देखिए बेटा, जैसे ज्यादा मात्रा में हमें जैसे कुछ जो रस्टिंग मिलता है ना बेटा, रस्टिंग, जैसे हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, वो से एज अ कोरिजन, जैसे कि झीज इन मराठी. तो इसी कोरिजन को लेकर देखिए बेटा, हम यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी यहाँ पे कैरी ऑन करेंगे, और उसी एक्टिविटी को लेकर जैसे वी हैव लर्न हियर द कोरिजन. सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द कोरिजन. तो देखिए बेटा, हम अभी कोरिजन को लेकर लर्न करेंगे. सो वी हैव टेक आवर फर्स्ट स्लाइड. तो देखिए बेटा, अभी अपनी फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे लेते हैं. सो इन दिस फर्स्ट स्लाइड I have shown here the experimental arrangement. Yes, in this slide देखिए बेटा, I have shown here the experimental arrangement, and for this experimental arrangement, yes, we have required some apparatus and chemicals. We have required some apparatus and chemical. देखिए बेटा, कोई भी हमें एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करना हो तो जैसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कलेक्शन करना पड़ता है, नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसे पहले हमें कलेक्ट करना होगा. And after the collections, yes, we have carried the experimental activity. And when we have carried the experimental activity, that time we have learned, we have observed some observation. Yes, okay. And these getting observations, we have think on it and we have concludes at last. This, that is one have a conclusion there. चलिए बेटा, तो यहाँ पे हमें conclusion के रूप में, जैसे कोरिजन एक कैसे यहाँ पे होता है, और एक ओरिजिन होने के लिए जैसे which factors are causal factors, yes, for carrying the process of the cohesion here. So we have learned
by experimental activity. So our requirement, that is the apparatus, which apparatus we have required here. So we have take the 4 test tube. देखिए बेटा सिंपली हमें कितने टेस्ट ट्यूब लेने बेटा यहाँ पे, we have choose here the 4 टेस्ट ट्यूब. चलिए हमें यहाँ पे 4 टेस्ट ट्यूब लेने. एक्चुअली जैसे we have take the 4 टेस्ट ट्यूब. yes, we have take there. देखिए बेटा यहाँ पे हमें प्रिकॉशन लेना कि वो कैसे हो बेटा, क्लीन हो, है ना बेटा, क्लीन. जैसे टेस्ट ट्यूब हमें लेना है, जैसे क्लीन ना हो तो पहले इसे क्या करना है बेटा, वाटर से पूरी तरह से वॉश कर कर हमें इसको ड्राई करते हुए ये ऐसे 4 टेस्ट ट्यूब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, लेना है उसको. फिर इसके बाद देखिए बेटा वी हैव टेक द 4 स्मॉल आयरन नील्स. जैसे आयरन नील्स यानी कि आयरन की कील, खीड़ा बोलते हैं इसको. तो आयरन नील ऐसे लेने, कितने आयरन नील लेने बेटा यहाँ पे, वी हैव टुक द 4 आयरन नील्स. इसके बाद देखिए बेटा रबर कॉर्क, जो माउथ को हमें जैसे उसको फिक्स करना है, उससे हमें एयर टाइट करना है, तो इसलिए हमें एक रबर कॉर्क भी लेना है बेटा. एक्चुअली इसके बाद देखिए बेटा हमें कुछ केमिकल्स लेने हैं. तो केमिकल्स में हमें क्या लेना है बेटा, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेना है. क्या लेना है बेटा, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है बेटा, जैसे कि वो इसमें वाटर नहीं, विदाउट वाटर. ठीक है, ऐसा यहाँ पे हमें केमिकल लेना है, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मीन्स विदाउट वाटर. चलिए बेटा इसके साथ ऑयल लेना है, फिर हमें यहाँ पे कुछ बॉइल वाटर लेना है बेटा. तो सच लाइक दैट दीज आर आवर रिक्वायरमेंट एंड वी हैव कलेक्टेड ऑल दीज नेसेसरीज. ठीक है, दिस रिक्वायरमेंट वी हैव कलेक्टेड एंड वी हैव स्टार्ट टू कैरी द प्रोसीजर, दैट्स अ एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी. चलिए बेटा, तो अभी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी यहाँ पे कैरी ऑन करते हैं. तो फर्स्ट प्रोसीजर इज फॉर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, टू टेक द 4 टेस्ट ट्यूब. देखिए बेटा मैंने यहाँ पे पिक्चर में, yes I have already present here, I have take here the 4 test tube, and for our convenience we have give its a name, yes okay, or a label as a 1 2 3 4. जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे नहीं बोल सकते, जैसे हम नंबर के अलावा यहाँ पे जैसे कुछ अल्फाबेट भी दे सकते हैं, जैसे कि ABCD. चलिए बेटा यहाँ पे हमें केवल आवर कन्वीनियंस के लिए, जैसे उसे हम इजी तरह से यहाँ पे उसे पहचान सके किस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे हमने क्या लिया है ना बेटा. जैसे कि हम अलग अलग यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे केमिकल्स को ऐड करना है, और यहाँ पे हमें आयरन नील्स यहाँ पे ऐड कर उसमें होने वाले चेंजेस को लर्न करना है. तो यहाँ पे पहले टेस्ट ट्यूब में कौन सा चेंज होगा, दूसरे में कौन सा चेंज होगा, तीसरे में कौन सा चेंज होगा, है ना बेटा, फोर्थ में क्या चेंज होगा. ये चेंज हमें देखिए बेटा माइन्यूटली केयरफुली हमें ऑब्जर्व करने हैं. तो देखिए इसमें ऑब्जर्व करते समय कुछ कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि टेस्ट ट्यूब जैसे देखिए बेटा एक साइज के होते हैं, सेम होते हैं, तो कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन होगा. तो टू अवॉइड दिस सच कंफ्यूजन, यस दैट्स व्हाई वी हैव गिव इट्स अ नेम एज अ, yes as a given numbers as well as the give the alphabets we have used there, जैसे कि 1 2 3 4. देखिए बेटा यहाँ पे हमने इस स्लाइड में मैंने यहाँ पे नंबर दिए है, जैसे कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को मैंने यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, जैसे रिस्पेक्टिवली. तो देखिए बेटा अभी हम क्या करना है बेटा, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में देखिए बेटा, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में तो एक्चुअली वी हैव ऐड यहाँ पे बॉइल वाटर. देखिए बेटा उसमें हमें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में बॉइल वाटर ऐड करना है. देखिए बेटा यहाँ पे ये जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रहा है नहीं, देखिए बेटा मेरा माउस का एरो देखिए, जिससे देखिए बेटा मूव हो रहा है यहाँ पे. तो ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है बेटा, ऐड अ बॉइल वाटर. अभी बॉइल वाटर ऐड करने के बाद इसके ऊपर हमें क्या करना है बेटा, जस्ट टेक द सम 2 to 3 ड्रॉप ऑफ ऑयल. इसके ऊपर हमें क्या करना है बेटा, टेक 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल लेना है बेटा. और जैसे हम ऑयल इसमें क्या करते हैं बेटा, ड्रॉप करते हैं, तो क्या होगा बेटा, इंस्टेंटली यू हैव गेट वन, देयर इज अ वन लेयर, इट्स स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, यस इनटू दैट टेस्ट ट्यूब. चलिए बेटा, तो एक हमें स्पेयर जैसे सॉरी एक लेयर हमें मिलेगा सेपरेटली. एक यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, सेपरेटली एक लेयर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमें वाटर के ऊपर जैसे यहाँ पे फ्लोट्स होते हुए दिखाई देता है ना बेटा, दैट्स अ फ्लोटिंग लेयर ऑफ द ऑयल on the surface of the water into that test tube. चलिए, why? Because the yes oil have a low density comparative to that water, and that's why oil is sprayed on the surface of the
वाटर। चलिए बेटा, अभी ऑयल ऐसे सरफेस की तरह यहाँ पे देखिए बेटा हमें सैचुरेशन वहां पे लेयर का दिखाई देता है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं बेटा, थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमें देखिए एक स्मॉल सॉल्ट, जैसे देखिए बेटा यहाँ पे हमें सम वाटर सॉल्ट लेना है। क्या लेना है बेटा, वाटर स्मॉल, जैसे कि कॉमन सॉल्ट होता है ना अपने घर में अवेलेबल होता है, इजीली वी हैव गेट इट, वी हैव टेक द 2 tablespoon common salt, just okay, and we have dissolved into the water, just okay, and add, that is a salty water we have taken to the test tube number 3। टेस्ट ट्यूब 3 में हमें क्या करना है बेटा, जैसे साल्टी वाटर लेना है। ठीक है बेटा, फिर देखिए बेटा इसके बाद जो दूसरा अपने जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है, देखिए बेटा जैसे यहाँ पे एक्चुअली देखिए ध्यान दीजिए बेटा, थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमें यहाँ पे जैसे ब्लैंकली छोड़ देना है। थर्ड टेस्ट ट्यूब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ब्लैंकली छोड़ना है बेटा, जैसे एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा एक बाय मिस्टेक। चलिए सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमें साल्टी वाटर लेना है और थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है बेटा, वी हैव पुट इट अ ब्लैंकेट, जैसे हमें उसे ब्लैंक छोड़ देना है। और जैसे हम उसे ब्लैंक छोड़ देंगे तो क्या होगा बेटा, जैसे हमें ब्लैंक छोड़ते हैं तो देखिए वो उसमें केवल हवा ही होगी, जस्ट मिस इज कंसिस्ट ओनली एयर, इस कंसिस्ट ओनली एयर। चलिए बेटा दैट्स एम्प्टी स्पेस। अभी एक्चुअली फोर्थ टेस्ट ट्यूब, तो फोर्थ टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है बेटा, टू ऐड द अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, उसमें हमें अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे ऐड करना है। एक्चुअली दीज गिवन just okay we have added into that each test tube as 1 2 3 4 respectively। चलिए बेटा after then we have take the iron needles, we have for this experiment we have take the 4 iron needles and 2 in each test tube we have add the 1 iron needles 2 in each, 2 in each। अभी क्या करेंगे बेटा, आयरन नील हम हर एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। एंड आफ्टर द एडिंग दिस आयरन नील्स, देखिए बेटा जो फोर्थ टेस्ट ट्यूब थी, yes, their mouth we have totally sealed by using the rubber cork, we have make it airtight। जो फोर्थ टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया है, अभी उस अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में हमने आयरन नील जैसे ही छोड़ दिया है तो हम झट से क्या करते हैं बेटा, उसको जो माउथ है उस टेस्ट ट्यूब का, केवल देखिए बेटा लास्ट टेस्ट ट्यूब के माउथ को हम क्या करते हैं बेटा, वी हैव फिक्स द रबर कॉर्क एंड मेक इट्स एयर टाइट, उसे हमें क्या करना है बेटा, एयर टाइट करना है। तो एक्चुअली we have do the procedure here, we have follow the procedure here, and after this carrying the procedure, after the carrying this procedure, these 4 test tube is okay, we have remain for a few days, we have remain at a that is attended for a few days, जैसे हम few days के लिए वहां पे छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे 2 दिन तक या 3 दिन तक, जैसे यहाँ पे देखिए बेटा जैसे उसको हमें कुछ समय देना है। और एक्चुअली वी हैव just remain attended is few day to that 4 test tube, and after the completions of the 2 or 3 days, yes we have take their observations, we have take their observation carefully, we have do the observation there। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि यहाँ पे ऑयल लेयर है ना बेटा, और बॉइल वाटर हमने ऐड किया है और उसके ऊपर जैसे कि ऑयल लेयर है, और जैसे हम आयरन नील को देखिए बेटा उसमें ऐड करते हैं तो देखिए क्या होगा बेटा, वहां पे आयरन नील जैसे कि यहाँ पे जो रस्टिंग होती है उसके ऊपर जैसे कि हमें एक जैसे कुछ लेयर वगैरह यहाँ पे परत इतनी जल्दी जैसे दिखाई नहीं देती है, थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल जैसे कुछ लेयर जैसे ब्राउनिश लेयर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे इतना भी लेयर वहां पे सैचुरेशन या कोई चेंजेस दिखाई नहीं देते हैं तुलना में। सेकेंड में देखिए बेटा हमने साल्टी वाटर लिया था, तो साल्टी वाटर में जो आयरन नील था इस उसके सरफेस के ऊपर पूरे तरह से हमें ब्राउनिश रेड कलर का एक सैचुरेशन एक लेयर यहाँ पे हमें जमा होते हुए डिपोजिशन दिखाई देता है। तो देखिए बेटा सेकंड में देखिए जैसे कि वहां पे हमें एक लेयर फॉर्म हो रहा है, क्या बन रहा है बेटा, वहां पे एक लेयर फॉर्म हो रहा है, और विच कलर ऑफ दैट लेयर, दैट इज अ ब्राउन इन कलर, उसका लेयर कैसा मिलता है बेटा, यहाँ पे ब्राउन कलर मिल रहा है। अभी थर्ड में देखिए बेटा हमने केवल वहां पे हैव ओनली द एयर, क्योंकि देखिए बेटा एम्प्टी प्लेस ऑक्यूपाई द एयर, हमने 7th में 6th में पढ़ा था। एक्चुअली टेस्ट ट्यूब पूरी तरह से एम्प्टी है, लेकिन एम्प्टी होते हुए भी उसमें क्या होता है बेटा, जस्ट कंसिस्ट द एयर, ऑक्यूपाई द एयर देयर। चलिए, तो हवा में क्या होता है बेटा, जैसे कि हवा में यहाँ पे मॉइस्चर होता है, वो ऑक्सीजन होता है, तो उसी ऑक्सीजन
को लेकर और उसी मॉइस्चर को लेकर उस टेस्ट ट्यूब में देखिए बेटा आयन नील के ऊपर यहाँ पे कुछ इफेक्ट बनते हैं और आयन नील हमें यहाँ पे जैसे कि उसके ऊपर एक येलोइश ब्राउन कलर यहाँ पे हमें बनते हुए दिखाई देता है। ठीक है बेटा, अभी थर्ड टेस्ट ट्यूब में चलते हैं। तो थर्ड टेस्ट ट्यूब में देखिए बेटा अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड था, दैट इज अ साल्ट हियर। एक्चुअली वी हैव क्लोज्ड इट, मेक इट एयर टाइट। यस, तब यहाँ पे देख बेटा उस आयन नील के ऊपर भी हमें कुछ इफेक्ट बनते हैं, वो भी इट्स बिकम आल्सो येलोइश ब्राउन कलर। ठीक है, उसके ऊपर भी हमें येलोइश ब्राउन कलर यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसी को लेकर देखिए बेटा हमें यहाँ पे सबसे फास्ट जैसे कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए बेटा ये चेंजेस किस टेस्ट ट्यूब में दिखाई देते हैं बेटा, जैसे कि यहाँ पे सेकेंड टेस्ट ट्यूब जो जिसमें कि आयरन जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसमें हमें जैसे कि ज्यादा चेंजेस हुए वाले दिखाई देते हैं, जैसे कि ज्यादा वहां पे लेयर जैसे येलो ब्राउन कलर लेयर सैचुरेशन दिखाई देता है। जैसे एयर में जैसे थर्ड टेस्ट ट्यूब में भी हमें यहाँ पे चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे वो भी यहाँ पे येलोइश ब्राउन कलर होता है। और फोर्थ में भी देखिए बेटा साल्टी वाटर साल्टी अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होने के कारण उसके ऊपर भी हमें येलोइश ब्राउन कलर लेयर वहां पे रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई देता है। तो इसी को लेकर देखिए बेटा, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी इसमें हमें देखिए बेटा इतनी रिएक्शन तो होती है लेकिन इतने सारे ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। तो अभी देखिए बेटा इसे ऑब्जर्व करते हुए हमें यहाँ पे अभी कंक्लूजन ड्रॉ करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा ये जो येलो और ब्राउन कलर का जो लेयर सैचुरेट होता है उस आयन नील के सरफेस के ऊपर, तो ये कैसे, ये किसका होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, यही हमें यहाँ पे लर्न करना है बेटा। तो ऑब्जर्वेशन में हमें देखिए बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चन सवाल बनते हैं, अभी उसी सवाल को हम आंसर करते हुए जैसे कंक्लूजन की ओर आते हैं। तो देखिए बेटा व्हाट डिड यू फाइंड, हमें यहाँ पे क्या फाइंड हुआ बेटा, जैसे आयन नील के सरफेस के ऊपर येलो इश ब्राउन कलर जैसे सॉलिड यहाँ पे डिपॉजिट होते हुए दिखाई देता है। ठीक है बेटा, तो ये हमें यहाँ पे फाइंड हुआ है। इसके बाद देखो बेटा which test tube had the nail as before, किस टेस्ट ट्यूब के ऊपर सबसे पहले हमें वो नील के ऊपर यहाँ पे सैचुरेशन होते हुए दिखाई देता है बेटा, जिसमें साल्ट है ना बेटा, जैसे साल्टी वाटर और जैसे अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इसमें जैसे झट से रिएक्शन होते हुए दिखाई देते हैं ज्यादा मात्रा में। एक्चुअली इसके बाद देखिए बेटा हैव यू सीन द इफेक्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन इन योर एवरीडे लाइफ। ऑफ कोर्स देखिए बेटा हमें एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जैसे ऐसे बहुत सारे हमें रिएक्शन लर्न करने के लिए मिलती है, जैसे रेडॉक्स को लेकर, जैसे बोथ साइमल्टेनियसली रेडॉक्स एंड जैसे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हमें दिखाई देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स बोलते हैं। इसके बाद देखिए बेटा बोथ वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। अभी हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, कंक्लूजन जो हमने एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया था ना, क्योंकि अभी देखिए बेटा जो हवा में जैसे कि टेस्ट ट्यूब में हवा थी उसमें हमें केवल आयन नील को जैसे छोड़ दिया था, तो उसमें भी हमें इफेक्ट दिखाई देते थे। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसे हम कंक्लूजन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे वाटर और एयर ये दोनों भी क्या होते हैं बेटा, नेसेसरी फैक्टर है यस फॉर द रस्टिंग, फॉर द क्या बेटा यहाँ पे रस्टिंग के लिए। जैसे ये येलोइश ब्राउन कलर जो दिखाई देता है दैट इज अ रस्ट हियर, उसे क्या बोला जाता है बेटा, रस्ट। रस्ट इन मराठी वी ऑफ सेज अ गंज, इसे क्या बोल सकते हैं हम, गंज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रस्टिंग प्रोसेस होती है टेक्स प्लेस रैपिडली, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ साल्ट, जो साल्ट सॉल्यूशन था उसमें देखिए प्रोसेस रैपिडली हमें दिखाई देती है, क्योंकि वहां पे उसके ऊपर जैसे जो आयरन नील के ऊपर जो लेयर बनता है तो हमें ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है। तो साल्ट में ये रिएक्शन क्या होती है बेटा, और जो केवल एयर में जो नील आयरन नील था जैसे थर्ड टेस्ट ट्यूब में, तो एक्चुअली वहां पे भी रिएक्शन हो रही है वाटर को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर, ठीक है ना, वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर देयर। तो जैसे लेकिन जैसे कि ज्यादा हमें रिएक्टिविटी रेट किस में दिखाई देता है बेटा, साल्टी वाटर में। साल्टी वाटर में अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज आल्सो वन साल्टी सॉल्यूशन देयर, वो भी एक साल्टी वाटर ही है, यहाँ पे साल्टी सॉल्यूशंस है। तो देखिए बेटा जैसे यहाँ पे एक रेडिश कलर मिल रहा है, जैसे येलोइश ब्राउन कलर और रेडिश कलर, चलिए बेटा रेडिश येलोइश ब्राउन और रेडिश ऐसे भी बोल सकते हैं। तो रेडिश कलर जो सॉलिड का लेयर यहाँ पे जो डिपॉजिट होता है ऑन दी सरफेस ऑफ द आयरन नील, इसी को क्या बोला जाता है बेटा, वी हैव से एज अ रस्ट। रस्ट एंड देयर केमिकल फार्मूला इज देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मिलता है दैट इज Fe2O3 हैविंग
XH2O, देखिए बेटा Fe2O3 हैविंग XH2O। व्हाट इज द XH2O? तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं, जैसे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। एक्स इन यानी कि एनी नंबर देयर, एक्स इज रेफर फॉर एनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हियर। देखिए बेटा हमें एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज अ मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ रस्ट, व्हाट इज अ मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या बेटा, दैट इज Fe2O3 हैविंग XH2O। समझ में आ रहा है बेटा, याद रखना है बेटा इस फॉर्मूले को, इट्स वेरी IMP। इसके बाद देखिए बेटा जो रस्ट होता है, आयरन डज नॉट फॉर्म्स बाय द सिंपल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द आयरन सरफेस। आयरन यानी कि जो नील का जो सरफेस है उसके ऊपर यहाँ पे देखिए ये दिखाई देता है। जैसे देखिए बेटा द रस्ट ऑन आयरन डज नॉट फॉर्म बाय सिंपल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद आयरन सरफेस। जैसे कि सिंपल रिएक्शन से ये नहीं होता है बेटा, है ना। उसके साथ हमें जैसे ऑक्सीजन, जैसे देखिए बेटा, और झट से प्रोसेस नहीं होती, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, है ना बेटा। ये रैपिड प्रोसेस नहीं है, ये फास्ट रिएक्शन नहीं बेटा, ये स्लो प्रोसेस होती है, धीमी प्रोसेस है। एंड द रेस्ट फॉर्म्ड बाय द एन इलेक्ट्रिकल रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जो रस्ट बनती है, तो ये रस्ट बनने के लिए जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे हमें यहाँ पे उससे उसी से रस्ट यहाँ पे बनती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखते बेटा डिफरेंट रीजन is on the surface of the iron because anode and cathode। एक्चुअली हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो लर्न करते हैं, तो एक्चुअली देखिए बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड एनोड यूज होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या होता है बेटा, कैथोड होता है। एक्चुअली एनोड जो होता है, एनोड ए क्या बेटा यहाँ पे जैसे पॉजिटिव है, और ये कैथोड निगेटिव है। कैथोड ये निगेटिव है, लेकिन निगेटिव के ऊपर पॉजिटिव बनता है, कैथोड पे पॉजिटिव डिपोजिशन होगा। और एनोड ये निगेटिव होकर, देखिए एनोड एक्चुअली क्या बेटा ये, सॉरी एनोड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के ऊपर यहाँ पे हमें निगेटिव, जैसे कि यहाँ पे लिबरेट होते हैं बबल्स के रूप में। एक्चुअली देखिए बेटा एनोड, एनोड एक्चुअली चार्ज इज एनोड के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होकर उसके ऊपर जैसे प्लस डिपॉजिट होगा। और जैसे कैथोड क्या बेटा ऑलरेडी निगेटिव है और उसके ऊपर पॉजिटिव डिपोजिशन होता है। ध्यान दीजिए, एनोड बोले तो पॉजिटिव और कैथोड बोले तो क्या बेटा, दैट्स अ निगेटिव, बट डिपोजिशन इज अ जैसे अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस। एनोड देखिए एनोड हैव अ पॉजिटिव, यस, एंड लिबरेट द जैसे माइनस चार्जेस इन फॉर्म ऑफ बबल्स। और कैथोड have a negative and depositions of the solid on the surface। चलिए बेटा ऐसे इस तरह से हम यहाँ पे एनोड और कैथोड को लेकर, जैसे कि कोई भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कैरी ऑन करते हैं तब, है ना बेटा। चलिए अभी इसी को लेकर अभी जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन। चलिए बेटा यहाँ पे हमने पहले ही लर्न किया था, पहले वाले क्लास में क्या लर्न किया था बेटा, जैसे कि लूजिंग द वन और मोर इलेक्ट्रॉन, losing the one or more electron, that is oxidation, and gaining the electron is known as a reduction। चलिए अभी इसी को लेकर, अभी ये एनोड के ऊपर होने वाले चेंजेस और कैथोड के ऊपर होने वाले चेंजेस को लेकर, एनोड के ऊपर होने वाले चेंजेस और कैथोड के ऊपर होने वाले चेंजेस। तो देखिए बेटा, तो हम यहाँ पे अभी लर्न करेंगे, जैसे पहले Fe को लेकर, जैसे Fe यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलिए बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब जैसे ऑक्सीडाइज होता है तो ये क्या कर रहा है बेटा, लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। और जैसे लूज करता है इलेक्ट्रॉन, कितने लूज इलेक्ट्रॉन करेगा वो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एंड इट्स लूजेस द 2 इलेक्ट्रॉन, जस्ट दैट टाइम दे possess a 2+ चार्जेस, देखिए बेटा जैसे फेरस पहले है सॉलिड कंडीशन में, जैसे कि यहाँ पे +2 चार्जेस बियर करेगा। जैसे एक्वेस में देखिए बेटा प्लस, जैसे यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे देखिए बेटा जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे प्लस है, प्लस का मतलब क्या बेटा, दैट्स दे लूज इलेक्ट्रॉन, जैसे लूज होते तो प्लस चार्ज बियर हो गए। चलिए बेटा एक्चुअली सेकंड में जैसे ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे गेन कर रहा है, और जैसे गेन करता है
देखिए बेटा गेनिंग इज नथिंग बट क्या है, रिडक्शन। देखिए बेटा ऊपर क्या बना, ऑक्सीडेशन, और नीचे यहाँ पे क्या मिला, रिडक्शन। तो रस्टिंग जो प्रोसेस होती है, तो रस्टिंग प्रोसेस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ रेडॉक्स। ध्यान दीजिए बेटा, रस्टिंग प्रोसेस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द रेडॉक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिकल केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें जैसे कि आयन यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, यानी बेटा अपोजिट आयन यहाँ पे हमें बनते हुए दिखाई देते हैं, और उनका जो जैसे यहाँ पे देखिए बेटा डिपोजिशन जैसे माइग्रेट्स होते हैं, है ना बेटा, जैसे माइनस चार्ज आयन जस्ट दे migrates toward the plus charge, plus, which is the plus here, that's a plus is a एनोड, ठीक है बेटा, एंड निगेटिव जैसे देखिए बेटा, और जैसे प्लस चार्जेस होते हैं, जैसे यहाँ पे Na प्लस सैचुरेशन होगा, तो सैचुरेशन ही माइनस के ऊपर होता है, जैसे माइनस कौन है यहाँ पे, एनोड, माइनस कौन है यहाँ पे बेटा, सॉरी, माइनस यहाँ पे कैथोड है, कैथोड के ऊपर प्लस चार्ज डिपॉजिट होते हैं, प्लस प्लस यानी कि क्या बेटा, मेटल, मेटल होता है। तो देखिए बेटा जैसे अभी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो गेन करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है दैट इज अ रिड्यूस, रिड्यूस, ठीक है, दैट इज अ रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज अ रिडक्शन टू फॉर्म द वाटर इन द कैथोड, कैथोड। देखिए बेटा, तो कैथोड के ऊपर जैसे यहाँ पे देखिए बेटा ये निगेटिव है तो प्लस, ऐसे यहाँ पे कैथोड जैसे रीजन पे जैसे O2 गैस फॉर्म में जैसे बबल्स बनेंगे, वहां पे जैसे 4H जैसे इन एक्वस फॉर्म, देखिए बेटा यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे 2H2 मॉलिक्यूल्स वाटर के यहाँ पे बनते हैं। तो देखिए ऐसे ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। एक्चुअली देखिए बेटा व्हेन द Fe++ दैट इज अ 2 प्लस चार्जेस migrate from anode region and they react with water and further get oxidized from Fe+3 ion, plus 3 that is a ferric, जैसे +3 होते हैं तो हम इसको फेरिक बोलते हैं। देखिए कल हमने इसको लर्न किया है डिटेल। चलिए बेटा, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये जैसे देखिए बेटा चेंजेस, जैसे कि एनोड के ऊपर होने वाले चेंजेस और कैथोड के ऊपर होने वाले चेंजेस, देखिए बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को लेकर, जैसे रस्टिंग को यहाँ पे हम लर्न करें, तो रस्टिंग ये जो प्रोसेस होती है, रस्टिंग होता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से हमें यहाँ पे रस्टिंग बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है बेटा, तो ये हमने यहाँ पे लर्न किया सिंपली। ध्यान दीजिए बेटा, थोड़ा सा इसको जैसे समझ कर यहाँ पे लर्न करना है, इसको सही ढंग से यहाँ पे रीड करो। ठीक है बेटा, अगेन वी हैव गो टू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए बेटा अपने अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बेटा ये रेडिश कलर हाइड्रोक्साइड जैसे हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हमें लेना है, तो जैसे रेडिश कलर दैट इज ये क्या बेटा, रस्ट है। रेडिश यानी कि हम इसको जैसे येलो ब्राउन भी बोल सकते हैं, येलो ब्राउन दैट इज अ रेडिश, है ना, तांबूस बोलते हैं मराठी में, रेडिश यानी कि तांबूस, जैसे येलो ब्राउन, येलो ब्राउन, येलो ब्राउन, जैसे वो रेडिश ही होगा ना कलर कॉम्बिनेशन। देखिए बेटा, तो एक्चुअली यहाँ पे जो रेडिश कलर जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स है, दिस इज फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ Fe+3 दैट इज अ फेरिक के रूप में मिलता है। फेरिक जो रस्ट बनेगा तो क्या बनेगा बेटा, जैसे कि फेरिक के फॉर्म में बनेगा, एंड इट इज कॉल्ड एज अ रस्ट, इट इज कॉल्ड एज अ रस्ट। देखिए बेटा फेरस कन्वर्टेड टू फेरिक, फेरिक इज अ रस्ट, रस्ट इट्स ओके, दैट्स व्हाई वी से एज अ Fe2O3 हैविंग XH2O। ध्यान दीजिए बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा है बेटा। चलिए नेक्स्ट, एक्चुअली देखिए रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है, तो इस रिएक्शन को अभी हम यहाँ पे लर्न करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे 2Fe3 इन फॉर्म ऑफ एक्वस, इट्स ओके। देखिए बेटा हमने जैसे कि Fe को क्या किया बेटा, वी हैव एडेड इनटू द वाटर, लिक्विड में हमने उसे ऐड किया है, और जैसे ऐड करते तो देखिए बेटा वहां पे हमें रिएक्शन कैरी ऑन होती है, यहाँ पे इंडिकेशन एरो है बेटा, और जैसे रिएक्शन कैरी ऑन होगी तो यहाँ पे Fe2O3 हैविंग H2 मिलेगा। ठीक है बेटा, ये H2 यहाँ पे बनते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बेटा हाइड्रोजन, ये क्या होता है, वजह से लिबरेट होता है? तो इसी तरह से यहाँ पे रिएक्शन होती है। देखिए बेटा एक बार ये रिएक्शन, और एक बार देखिए बेटा हमने वाटर लिया है जैसे कि H2O, और इसमें हमने आयरन को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया है, और जैसे ही वहां पे ऐड करते तो रिएक्शन कैरी ऑन होगी।
है ना बेटा, दैट इज अ स्लो रेट रिएक्शन है। तो रिएक्शन जैसे कैरी ऑन होती है तो स्लो रेट क्यों बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 डे तक उसे क्या किया था बेटा, वी हैव स्टे रिमेन, है ना, 2 दिन तक हमें उसे क्या किया था बेटा, जैसे प्रोसेस के लिए हमने उसे छोड़ दिया था, अभी 2 दिन के बाद फिर हमने उसको ऑब्जर्व किया था उस टेस्ट ट्यूब को, ध्यान दीजिए बेटा। तो रिएक्शन यहाँ पे रैपिड नहीं है, दैट स्लो रिएक्शन। तो इसमें देखिए बेटा हमें यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, Fe2O3 x H2O, x यानी कि कितने भी, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखिए बेटा H2O मिलता है, हैविंग H2O। तो ये देखिए बेटा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे क्रिस्टलिन सॉलिड, सब जैसे क्रिस्टल, स्फटिक स्फटिक सब्सटेंस, और दैट इज क्या बोलते हैं, क्रिस्टलिन कंपाउंड, क्रिस्टल कंपाउंड। जैसे रस्ट एक, इट इज वन काइंड ऑफ द क्रिस्टल कंपाउंड, इट इज वन काइंड ऑफ द क्रिस्टल कंपाउंड, है ना बेटा, एडिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स हियर। चलिए, तो एक्चुअली ड्यू टू द वेरियस कंपोनेंट्स दिस ऑफ एटमॉस्फेयर, एक्चुअली ये जो रस्टिंग होती है, ये रस्टिंग किसको लेकर होती है बेटा, अफेक्टिंग फैक्टर यहाँ पे कौन से होते हैं, तो जैसे जैसे डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैरी ऑन करने के लिए, ठीक है बेटा, मेटल को जैसे ऑक्सीडाइज करने के लिए, देखिए बेटा, तो कॉन्सिक्वेंसली यहाँ पे रिजल्टिंग इनटू द, जैसे कि डैमेज, जैसे एयर के द्वारा, जैसे मॉइस्चर के द्वारा, ठीक है बेटा, एयर में मॉइस्चर होता है ना बेटा, एज वेल एज द ऑक्सीजन है। तो ये सभी सभी फैक्टर जैसे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में होते हैं, और एटमॉस्फेयर में यहाँ पे देखिए बेटा जो ये फैक्टर कंसिस्ट होते हैं, इसी को लेकर जैसे मेटल के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होते हुए दिखाई देते हैं, जैसे आयरन के ऊपर भी ऑक्सीडेशन होता है, जैसे देखिए बेटा एल्यूमिनियम के बर्तन के ऊपर भी हमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैरी ऑन होते हुए दिखाई देते हैं, कॉपर के ऊपर भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, जो भी कुछ बहुत सारे से मेटल्स जो होते हैं, तो मेटल्स को लेकर देखिए बेटा, ईच मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, हर एक मेटल देखिए बेटा ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज जब होता है तो देखिए बेटा यस हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज करता है। तो देखिए बेटा हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में इसकी डेप्थ हम, जैसे कि मेटलर्जी इस चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल को लेकर हम आगे आने वाले चैप्टर में उसे डिटेल में लर्न करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो आयरन रस्ट है, तो ये कैसा बेटा, इसका कलर है येलो ब्राउन और रेडिश, येलो ब्राउन और रेडिश, देखिए बेटा, तो ये कलर होता है, और ये कलेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ दैट मेटल, मेटल के ऊपर यहाँ पे हमें बनता है। एक्चुअली दिस इज अ कोरिजन ऑफ आयरन, इसी को ही बोला जाता है कोरिजन, यही कोरिजन होता है, कोरिजन यानी कि जीज, कोरिजन का मतलब क्या होता है बेटा, जीज, यस, एंड दिस कोरिजन ऑफ आयरन, तो आयरन को लेकर यहाँ पे हमने कोरिजन लर्न किए हैं। तो अलग अलग मेटल के लिए भी ये कोरिजन होती है, लेकिन ये कोरिजन कैसी प्रोसेस है बेटा, दैट स्लो प्रोसेस, दिस इज अ स्लो प्रोसेस। एक्चुअली यहाँ पे देखते बेटा, हम यहाँ पे आंसर को, क्वेश्चन को आंसर करना है बेटा, फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा है, देखिए बेटा मैंने यहाँ पे रस्टिंग को लेकर केवल हम आयरन नील को ही लेकर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया है, और रस्ट को यहाँ पे डिफाइन किया है ना बेटा। रस्ट, ये रस्ट क्या होता है, तो रस्ट इज अ रेडिश कलर हाइड्रेटेड ऑक्साइड, देखिए बेटा रस्ट इज अ रेडिश कलर हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ठीक है, इज फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ Fe+3 दैट इज अ फेरिक, इज कॉल्ड एज अ रस्ट। एंड देखिए इसको याद रखना है बेटा, और व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ रस्ट, दैट इज Fe2O3 हैविंग XH2O, ये वाला फॉर्मूला है। देखिए आईएमपी यहाँ पे यही आईएमपी है, जैसे एक्सपेरिमेंट को लेकर हमें कुछ इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें डेफिनेशन डिफाइन द रस्ट, यस गिव इट्स अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, ये यहाँ पे पूछा जाता है। जैसे कि रस्ट क्या होता है बेटा, तो रस्ट एक येलोइश ब्राउन और रेडिश, येलोइश ब्राउन और रेडिश हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, और रस्टिंग प्रोसेस जब होती है तो इसमें जैसे हमें रेडॉक्स रिएक्शन दिखाई देती है, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी होते हैं। देखिए ये आईएमपी है यहाँ पे, ठीक है। अभी सभी मेटल यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा, ये रिएक्शन हमें दिखाई देते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस को लेकर, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के साथ वो क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एक्चुअली यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन को आंसर देना है बेटा, सिंपली देखिए बेटा, हाउ आर द blackened silver utensil and painted greenish brass utensil cleaned, ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा कैसे क्वेश्चन है।
जो सिल्वर कभी कभी ब्लैकन होते हैं, जैसे कुछ यहाँ पे सिल्वर जैसे जैसे ज्वेलरीज होती है कुछ सिल्वर की, देखो देखिए बेटा जैसे सिल्वर की ज्वेलरी यहाँ पे ब्लैकिश कलर होती है, और कुछ यहाँ अपने यहाँ पे जैसे ब्रास के यूटेंसिल्स होते हैं, तो देखिए बेटा वो जैसे कि उसके उसके ऊपर ऐसे जैसे ब्लूइश पैचेस हमें दिखाई देते हैं, और अभी उसको हमें रिमूव करना है। जैसे सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर होता है, या जो ब्रास स्पॉट के ऊपर यहाँ पे हमें जैसे कि ब्लूइश कलर पैचेस दिखाई देते हैं, उसे रिमूव करने के लिए, जैसे उसे क्लीन करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं। देखिए बेटा ऐसा क्वेश्चन है, तो देखिए बेटा इसका आंसर हमें यहाँ पे ऐसा मिलता है, जैसे कि जैसे यहाँ पे जैसे ब्लैक एंड सिल्वर होता है, कुछ ब्लैक एंड सिल्वर यूटेंसिल्स होते हैं या ज्वेलरी होती है, यस वी कैन क्लीन इट बाय यूजिंग दी एल्यूमिनियम फॉइल। हम एल्यूमिनियम फॉइल को लेकर उसे क्या करेंगे बेटा, क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बेटा तो एल्यूमिनियम क्या होता है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ देखिए बेटा ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन को यहाँ पे हम क्या करना है, जैसे रिडक्शन होगा वहां पे, जैसे ऑक्सीजन को हम यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम क्या करेगा बेटा, कंबाइन करेगा, है ना। जैसे ठीक है बेटा, हैव एफिनिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो देखिए बेटा जैसे एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं हॉट वाटर, और हॉट वाटर में करेंगे, जैसे हॉट वाटर से क्या होता है बेटा, रिएक्शन रेट यहाँ पे क्या होती है भाई, बढ़ेगी, है ना बेटा, ड्यू टू द टेम्परेचर, हॉट वाटर है। यस, बेकिंग सोडा दैट इज वन एज अ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम यूज करेंगे। साल्ट, साल्ट भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, तो हमें देखिए कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी होती है या यूटेंसिल्स होते हैं, उसे क्लीन करने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज करेंगे, हॉट वाटर, बेकिंग सोडा और साल्ट, इसको यूज करते हुए हमें उसे क्लीन करते हुए सरफेस। ठीक है, आफ्टर देन देखिए बेटा, फाइल पेंटिंग ग्रीनिश ब्रास, एक्चुअली जो ग्रीनिश ब्रास जो होते हैं, है ना, कुछ ऐसे कुछ आर्टिकल्स अपने आजू बाजू में होते हैं क्या, अपने डेली यूज में हम उसे यूज करते हैं, तो ऐसे यूटेंशियल को क्या करना है बेटा, वी हैव क्लीन बाय यूजिंग द लेमन जूस, हम उसे लेमन जूस से क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, एंड बेकिंग सोडा को लेकर हम यहाँ पे उसे क्लीन कर सकते हैं बेटा। तो सिंपल से ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो रस्टिंग ये जो प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस हमें अपने लाइफ में इसे हर जगह यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि देखिए बेटा, क्योंकि रस्टिंग को लेकर जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही ज्यादा हम उसे यूज करते हैं, जैसे व्हीकल्स के पार्ट हो, या घर में हम यूज करने वाले अलग अलग जो कुछ यहाँ पे यूटेंसिल्स है, यूटेंसिल भी आयरन से, आयरन मटेरियल से बनाया जाता है, और दूसरे भी जैसे कि मेटल्स मटेरियल्स होते हैं उसमें। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा आगे वी हो गो टू द नेक्स्ट। अब देखिए बेटा हम नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, दैट इज वन अवर एनसीडीटी। तो रेंसिडिटी क्या होती है, सिंपल सा यूनिट है बेटा, स्मॉल यूनिट है, जस्ट इसको इसको हम ऐसे झट से यहाँ पे लर्न करेंगे। तो रेंसिडिटी मीन्स वी हैव से इन मराठी दैट इज वन हैव खवटपना। तो रेंसिडिटी एक प्रोसेस है बेटा, जस्ट व्हेन वी हैव यूज्ड द ओल्ड लेफ्ट और द लेफ्ट ओवर द कुकिंग ऑयल लेफ्ट ओवर, जैसे कि बचा वाला ऑयल होता है ना, उसे हम छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए वहां पे रख देते हैं, तो उसके उसमें देखिए बेटा वी हैव गेट सम अनवांटेड चेंजेस, अनवांटेड undesirable changes we have get here, unwanted changes, those changes we not acceptable, जैसे हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, इतने से उनमें अनवांटेड चेंजेस होते हैं, बुरे चेंज होते हैं। जैसे उसका जो ओडर होता है, देखिए फाउल ओडर होता है, ठीक है, जैसे दुर्गंधी होती है, अवांछनीय बोलते हैं इसको, और ये जो बदल होते हैं अवांछनीय बदल की, जो हम उसको सहन नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, चलिए, तो जो बचा वाला ऑयल होता है, ठीक है, और ऑयल जैसे फूड स्टफ होता है, यस इट्स फॉर्म, यस, तो ऐसे हमें मिलते हैं, तो उसमें देखिए बेटा हमें वी हैव गेट द वन दैट इज अ बैड स्मेल, दैट इज अ फाउल ओडर, उसको उसका ओडर क्या होता है बेटा, दैट्स अ फाउल ओडर, यस इज कॉल्ड एज अ रेंसिडिटी। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, रेंसिडिटी। देखिए बेटा इन फूड स्टफ और द ओवरलेफ्टेड ऑयल जस्ट आफ्टर सम सर्टेन टाइम ड्यूरेशन पीरियड, yes gap, yes we have stored for some gap period, just okay, and we do not just use it instantly, and it keep for a long time, that time due to the completion of the oxidation process। देखिए बेटा एक्चुअली यहाँ पे जैसे एक कुछ चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, और उसी बदलाव को लेकर यस वी हैव गेट द सम अनवांटेड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस हियर, हम उसको अनएक्सेप्ट
जैसे हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ऐसे चेंजेस वहां पे होते हैं। एंड हैव जैसे फाउल स्मेल, अवांछनीय वास, जैसे कि घानेरडा बोलते हैं इसको। फाउल यानी कि क्या बेटा यहाँ पे घानेरडा वास। एक्चुअली इसी को लेकर जैसे ऐसे चेंजेस होते हैं, इसे ऐसे चेंजेस को ही, ऐसे बदलाव को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, वो एज अ रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी होती है। तो ये फूड में दिखाई देता है, जैसे कुछ ऐसे, जो कुछ ऐसे देखिए बेटा घी में होता है, जैसे ज्यादा समय से स्टोर किया वाला घी हो, है ना बेटा, एज वेल एज कुछ लेफ्टेड घी हो। स्टोर के लिए की वाले घी में इतना नहीं होती, लेकिन हम स्टोर करते हैं, यूज करते हैं और वैसे ही छोड़ देते हैं, है ना बेटा, आधा यूज करके उसे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे छोड़ दिए वाले ऑयल में या घी में ऐसे चेंजेस हमें झट से, या फूड स्टॉक में ऐसे चेंजेस हमें जल्दी होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए बेटा, तो ऐसे जो फूड्स होते हैं, जैसे लॉन्ग टाइम तक हम उसे क्या करते हैं बेटा, रख देते हैं, तो यहाँ पे अंडरगो द प्रोसेस होती है, वहां पे पूरी तरह से क्या होता है बेटा, एयर ऑक्सीडेशन बिकम अ रेंसिड। यहाँ पे एयर ऑक्सीडेंस ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पे वो क्या बनेगा बेटा, रैंसिड बनेगा। अवांछनीय बदल वहां पे होते हैं, रैंसिड यानी कि खवटपना बनेगा। जैसे अभी देखिए ग्राउंडनट्स होते हैं, शेंगदाने बोलते हैं हम इसको। तो उस ग्राउंडनट्स में देखिए बेटा, जैसे हम डिब्बे में रख देते हैं, उसे क्लोज कर कर रख देते हैं, तो एक्चुअली देखिए बेटा उसमें प्रोसेस होते हैं बहुत दिन तक, जैसे कि उसे वही डिब्बा हमने वैसे ही छोड़ दिया है, हमें ध्यान ही नहीं है, और वो डब्बा वैसे ही वहां पे रह जाता है। और कभी हमें ध्यान आती है झट से कि वहां पे उस डिब्बे में हमने ग्राउंडनट्स रखे वाले शेंगदाने रखे हैं, तो जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो देखिए बेटा हमें अंदर से एक जैसा फूल ओडर आता है, जैसे कि अनएक्सेप्टेबल यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं, ऐसे जो बदलाव होते हैं, इसी को ही बोला जाता है दैट्स द रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी होती है। तो अभी इस रेंसिडिटी को हमें प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट यूज करना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट जैसे ऑक्सीडेशन होने के लिए, एंटी यानी कि अपोज करना है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हम यहाँ पे अपोज करेंगे, एंटी ऑक्सीडेंट यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए बेटा, तो इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ इज ओके कैन आल्सो बी स्लो रिएक्शन। ये भी स्लो रिएक्शन है कि जल्दी से नहीं होता है बेटा। जैसे हम अलग अलग जैसे कुरकुरे होते हैं, चिप्स होते हैं, बेटा कुछ ऐसे पैकिंग्स होते हैं बेटा, रैपर्स यूज करते हैं ना, तो उसमें देखिए बेटा जो उनके जो एनवेलप्स होते हैं, देखिए बेटा एयर टाइट होते हैं। अभी एयर टाइट होने के कारण एक्चुअली देखिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट वहां पे यूज किए जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, और वो उनमें जो रेंसिडिटी जो प्रोसेस होती है, रेंसिडिटी की प्रोसेस वहां पे कैरी ऑन नहीं होगी, क्योंकि देखिए बेटा उसे स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पे जैसे हवा बंद बोलते हैं, जैसे एयर टाइट हमें यहाँ पे पैकिंग यूज करना पड़ता है। जैसे कुछ यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कैंस होते हैं, है ना बेटा, डिब्बे होते हैं, वो भी जैसे देखिए बेटा सील्ड होते हैं, एयर टाइट होते हैं। तो देखिए बेटा वी हैव स्टोर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, जैसे कुछ फूड स्टफ, तो पैकिंग हमें सही ढंग से करनी पड़ेगी, और उस पैकिंग में हमें क्या यूज करना है बेटा, एंटीऑक्सीडेंट यूज करने हैं। एंटीऑक्सीडेंट म्हणजे यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो उस फूड स्टफ में होती है उसे हमें अवॉइड करना है, उसे हमें रोकना है। चलते बेटा, तो इसी तरह से देखिए बेटा, एज वेल एज हम यहाँ पे देखिए जैसे एयर टाइट करेंगे, हम्म, और उसको अच्छी तरह से सुखाना वगैरह, उसमें जो कुछ वाटर कंटेंट होते हैं उस वाटर कंटेंट को भी हम रिमूव कर कर, ठीक है बेटा, सही पैकिंग कर कर, सही एयर टाइट पैकिंग बनाते हुए, जैसे रेंसिडिटी उनमें जो होने वाली चेंजेस, ये जो प्रोसेस होती है, तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं सिंपल। तो देखिए बेटा इस तरह से हमने अपनी रेंसिडिटी यहाँ पे जैसे कंप्लीट की है। इसमें कोई डाउट है बेटा, तो रेंसिडिटी हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलती है सिंपली हियर। ठीक है, सो वी हैव लर्न हियर द अबाउट द रेंसिडिटी है। समझ में आ रहा है? तो ये रेंसिडिटी को लेकर देखिए बेटा एग्जाम में हमें यहाँ पे पूछा जाएगा, डिफाइन द रेंसिडिटी, यस, एंड हाउ वी हैव अवॉइड इट। रेंसिडिटी को हमें अवॉइड कैसे किया जाए, इसी को लेकर देखिए बेटा हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। सो इन next period we will continue our next chapter just related to the electricity. ठीक है, so we will see tomorrow. Thank you.